चलो हर शाम की तरह आज की शुरुआत करते हैं बर्थडेज का। जैसे आज का दिन है 11/11/11 विच इज सच ब्यूटीफुल डे। आई मीन जितने भी लोग आज के दिन बॉर्न हुए, आई एम श्योर दे आर प्राउड ऑफ इट दैट वाओ यू नो इट्स माय बर्थडे 11/11/11। सो आज की शुरुआत करते हैं बर्थडे कार्ड से। जो हमारी खासियत रहती है कि जितने भी बर्थडे व्यूअर्स है या जितने भी बर्थडेज है आज के दिन, या जितने भी लोग आज पैदा हुए हैं जिनकी बर्थ हुई आज, उन सभी से हम लोग पहले तो विश यू अ लवली बर्थडे कहना चाहेंगे फ्रॉम मी एंड सनराइज एज वेल। तो देखते हैं आज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं फॉर स्पेशली फॉर द बर्थडे पीपल। बेसिकली मैं 11 कार्ड से शुरुआत करती हूँ। तो विल स्टार्ट विथ नंबर 11 दैट्स अ सिलेक्शन फॉर टुडे सिंस इट्स 11th ऑफ November. 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So this is the card number 11. So let's see the future. Okay, not bad. The best thing is when you call me on air, आप अपने खुद के कार्ड्स देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि हम जो आपको कह रहे हैं या जो भी हम आपको दिशा है या any options whatever we are giving you on the show, it helps you to know, to acknowledge and at the same time for you to realize that what are the cards saying. Because ज़्यादातर लोग ऑफ एयर में कार्ड्स नहीं देख सकते हैं, but on air we always say people that don't worry, you know, we explain to you the cards as well as and when it comes. So that it's very good for them to know, understand. At the same time, they can also view their own cards. So let's start the card number 1. That's saying this, going slow. It means that मैं जो भी देख रही हूँ कि especially birthday peoples who are born today, we can see that उनकी life थोड़ी सी slow and steady है. I would say it is not like एकदम speed से उनकी जिंदगी में कुछ आता है. Whatever they do in life, it's absolutely very slowly and very steadily. Like the card number 1 which we see, the tortoise always we say that slow and steady wins the race. So that's a very good thing which according to me, again what my cards are saying, कि they will never have a failure in life. Because वो लोग जो भी चीज़ करते थोड़ा सा वक्त लगाते हैं वो लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग फेलियर है। और one more thing I would say for this card is that it shows lot of good benefits in terms of monetary, कि उनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म में। इनके आज अभी फिलहाल जो भी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, स्पेशली 11 नवंबर बॉर्न, आई सी देयर फ्यूचर गोइंग वेरी वेल बिकॉज आई सी द फाइनेंशियल्स ऑल्सो कमिंग अक्रॉस देयर वे एंड आई सी इट्स अ लॉन्ग टर्म मनी विच दे आर गोइंग टू गेट you know in their near future. We see the card number 2 which is actually I would say that people who are going through any legal problem in their life, which it could be anything, any legal problem or anything regarding the health, जो भी लोग जो डॉक्टर को काफ़ी समय से मिल रहे हैं विद स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज, उनके लाइफ में भी काफ़ी सारी बेनिफिट्स आ रही है कि they have to have a little courage, they have to go through little pain, but they are having success as well. कि जैसे यहाँ पे जो हमारे यहाँ कार्ड्स दिख रहे हैं नंबर 2 वाले, which talks about legality or anything which is doing with the professional, that could be a doctor, related doctor or related to lawyer. So we see some good things, that is they'll very slowly they'll be getting out of this. Well, the other cards are equally good, but there's also one more good news for people who are looking forward to get married, which is the card number, I would say 7th, which says that they will get married within this coming year. That's in between 2011 to 2012. So that's a very good sign again. However, I would also like to emphasize more in terms of success, कि ये साल उनको बहुत अच्छी सक्सेस है। उन्होंने जितना भी कुछ सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में, जो वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, जो पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी सक्सेसेस है लाइफ में। सो इफ़ यू सी द लास्ट 5 cards that talks about the same thing about success, and it talks about more of the financial background, it talks more about the partner, which is also a very good sign. So all the best I would say to each and everybody, and again I would say that wish you a lovely birthday from me and Sunrise. Enjoy your birthday and do remember us.
Priyanka. So I would say we have a special request. It seems Priyanka, who is one of our viewers, again, she just happened to say that it's my birthday and she liked the reading of the cards as well. So I would just say, Priyanka, that wish you a lovely birthday from me and Sunrise, and hope you have a beautiful future ahead. And do remember us and have a good cake. Thank you, Priyanka, so much. We'll go to our callers. Hello. 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 हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मुझे अपनी को छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे पूछना था क्योंकि मेरी कोर्ट डेट है बच्चों के बारे में। हाँ जी। तो उसके बारे में मुझे पता नहीं, अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन वो जो सोशल वर्कर है वो तो 14 को सारा जो है कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, लेकिन डेट मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक या वीक आफ्टर को होगी। लेकिन आप देख सकते हैं क्या ये मेरे फेवर में जाएगा या नहीं। दूसरा ये है कि जो मेरे माली हालात हैं वो बहुत काम ढूंढती हूँ, काम नहीं मिलता है, वो भी इसके बारे में भी मुझे पूछना था। श्योर। तो हम लोग अभी फिलहाल आपका कोर्ट केस पहले लेते हैं सवाल, क्योंकि एक मतलब 1 क्वेश्चन एट अ टाइम हम ले सकते हैं। जी चलो ठीक है। तो आपका ये जो है बच्चों का, तो मुझे आप बताएंगे कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3। तो आप तीनों के लिए कोर्ट के लिए जा रहे हो, राइट? जी। बड़े के बड़ा तो वो नहीं आता है, लेकिन 2 छोटों के लिए जा रही हूँ। 2 छोटों के लिए जी। तो मुझे उनका इनिशियल्स आप बताएंगे? ए। हाँ जी, ए और एच। जी ठीक है। तो मुझे आप 2 कार्ड दीजिए, एक ए के नाम का दीजिएगा और एक एच के नाम का। तो पहले हम लोग ए का कार्ड लेंगे प्लीज। तो एक नंबर सिलेक्ट कीजिए 1 to 79 के बीच में। 1 to 1 से लेकर 79, 80 के अंदर। अच्छा 20। तो ये मिस्टर ए के लिए आपके बच्चे के नाम जो है। अच्छा, ये लड़की है ए। और दूसरा कार्ड एच के लिए नंबर 11। ठीक है। ऑलराइट, सो ये ए और एच। जी। ए एच। मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख तो लग रहा है जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ए का चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, इनफैक्ट नहीं जैसे लग रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो एच के चांसेस है वो 50-50 है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बतानी पड़ेगी वहाँ पे कि आपका स्टेटस क्या है। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो गए इन केस, तो फिर मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या कहा है। मतलब पैसे का, मतलब बोलते ना कि आप कैसे उनको रखोगे, कैसे आप उनको संभालोगे। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं संभाल लूंगी। पहले भी मेरे पास थे वो, उनकी फिर कोर्ट ने पता नहीं अपने बाप के साथ मूव कर दिए, लेकिन अभी तो ऐसी बात नहीं है, मैं अपने पास उनको रख सकती हूँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे जो कार्ड आ रहा है, जो आपको दिख भी रहा है, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पैसे के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा उस वक्त जब भी आप कोर्ट में जाओगे, तो काफी सारे सवाल आएंगे पैसे को लेके। और इनकेस इसमें अगर आप फेल होते हो, जो उनको जो जरूरत है और उसकी जरूरत के हिसाब से। लेकिन आप मुझे इतना बता दें कि आप मुझे कांटेक्ट के लिए, वो मुझे बच्चे मिलेंगे कांटेक्ट के लिए? हाँ जी, वो आपको वो प्रॉब्लम नहीं है। द सेकेंड कार्ड नहीं, लड़की का थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन लड़के में मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है एट दिस मोमेंट, बिकॉज ये वाली जो है वो लड़की है। हाँ, तो एक का तो मैंने आपको मना कर दिया कि उनका चांसेस बहुत ही कम है। इनफैक्ट मैं आपको होते तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस पे, लेकिन मैं आपको बोलूँगी इसकी आशा थोड़ी सी कम रखिएगा प्लीज, बिकॉज ऐसा नहीं हो कि आपकी दिल भी दुखे और कल उठ के आपको ऐसा लगे कि मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ गया टाइप्स। लेकिन आपका जो एच है बेटा, लेकिन आप मुझे इतना बता दें, मैं कस्टडी के लिए मैं कहती हूँ कि मुझे कस्टडी मिले, लेकिन ये है कि मुझे विजिटर मिलेंगे, वो मेरे पास आकर थोड़ा टाइम मेरे पास गुजारेंगे, जो वैसे विजिटर होते हैं बच्चे जैसे मिलते रहते हैं ऐसे वो आएंगे। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा दिक्कत मतलब मैंने बोला आपके बेटे के लिए आपके चांसेस है थोड़े ब्राइट, ठीक है, लेकिन आपकी बेटी का मुझे चांसेस नहीं लग रहा है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आई थिंक लॉयर विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एट दिस मोमेंट, बिकॉज मुझे जो लग रहा है कार्ड की, तो शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ कि
थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। अच्छा। और थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिएगा भी, बिकॉज जो मुझे लग रहा है अगर तो आपके लेकिन ये जो मिलने के लिए जो थोड़े बहुते मिलना उनका, उसमें भी दिक्कत आ रही है। हाँ, वही मैं बता रही हूँ ना आपको कि मिलने में भी आपको दिक्कत आएगी। अभी भी आपको चालू है दिक्कत, मतलब थोड़ी सी अभी भी मुझे दिक्कत बहुत आ रही है। हाँ जी, हो गया मैंने उनसे नहीं मिली हूँ। हाँ जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मुझे आपकी बेटी के लिए तो मुझे नो ही आंसर आया है। लेकिन मेरी बेटी जो है वो पता नहीं मेरे साथ तो बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी मेरे साथ। अभी मुझे नहीं लग रहा है, मुझे अभी कुछ फील हो रही है कि नहीं वो एक्चुअली दीदी मुझे ना पता नहीं मैं क्या बोलूँ आपको, क्योंकि मेरे कार्ड्स तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब आपको भी दुख होए कुछ सुन के, लेकिन मैं यही आपको बताऊं। मैंने पहले भी 1-2 बार मैंने किसी से पूछा, उन्होंने सेम ही बात कही है कि बहुत मुश्किल है ये। हाँ जी, ये क्योंकि मुझे आपका बेटा आपका बेटा है, राइट जी? हाँ जी, मुझे उसमें लग रहा है कि आप कहीं 50% आपका चांसेस है कि मतलब हाँ 50% है। लेकिन वही मुझे लग रहा है कि जो भी चांसेस है वो पैसे के लेकर ही है। मतलब अगर आप पैसे के लेके अगर आप सेटिस्फाई करते हो, यू नो। मुझे ऐसा आप कोई जब मैं कोर्ट में जाऊं कैसा कलर कैसा पहनूं, या कोई ऐसी है कोई मैं बताती हूँ आपको कि विच इज द बेस्ट कलर फॉर यू टू वेयर ड्यूरिंग द कोर्ट, ताकि आपको थोड़ी सी यू नो सामना भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो जो भी उनका डिसीजन रहेगा। मुझे आपका इनिशियल बताएंगे प्लीज? फिर नाम आपका इनिशियल, आपका नाम मतलब जी से शुरू होता है? जी 1 to 79 कोई भी एक कार्ड चूज कीजिए आप। 20 ओके। Alright, this is your card number 20, so let's see. अगर आपको ये थर्सडे आता है आपका कोर्ट का केस, तो आप हाँ अगर थर्सडे आता है तो आपको ये येलो पहनना है। अच्छा। और या तो फिर किसी और दिन एक्सेप्ट फ्राइडे आता है तो आपको रेड पहनना है। अच्छा ठीक है। और अगर फ्राइडे आता है तो आपको पर्पल पहनना है। पर्पल हाँ, मतलब डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, पर्पल जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जो शेड्स ब्लू के ऊपर जाते हैं, तो वो आपको फ्राइडे पहनना है। लिख लेती हूँ 1 मिनट। हाँ आप लिख लीजिए। जी मुझे याद नहीं रही, सॉरी। हाँ जी जी, आपने फ्राइडे को कहा। हाँ अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो वेडनेसडे आता है आपका पहला केस, तो आपको ग्रीन पहनना है। अच्छा ठीक है। अच्छा वेडनेसडे को। हाँ जी। थर्सडे आता है तो आपको येलो पहनना है जी। और फ्राइडे आता है तो पर्पल पहनना है। पर्पल ब्लू, मतलब एनी शेड ऑफ ब्लूइश। ओके। एंड इन केस अगर तो मंडे या ट्यूसडे आता है, दोनों में से कोई भी एक दिन, तो आपको रेड पहनना है उसे। मतलब आई वुड नॉट से दोस ब्राइट रेड, लेकिन जैसे वो प्लम का कलर कैसे होता है, जी मैं समझ गई, वैसा वाला कलर आपको पहनना है। जी मैं समझ गई हूँ आपने कैसा कहा है। थैंक यू सो मच। या और एनी टाइम। और आपका एक सवाल था ना जो आप पूछ रहे थे मुझे? कोई बात नहीं, मैंने पहले भी 1-2 बार से किसी से पूछ चुकी हूँ, उन्होंने सेम ही मुझे बताया। सेम बताया।